हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पीसीएस बाबा पावर्ड बाय लोक सेवा एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस बाबा पर। होप यू आर सेफ एंड यू आर डूइंग फाइन। सो we are discussing the initiative of this net practice 50 days plan. Just starting of video, I wanted to tell all the aspirants just so that please this initiative, please follow this initiative rigorously. प्लीज़ इस इनिशिएटिव को आप दिल से, मन से और पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो कीजिए। आई कैन गारंटी यू दैट दिस इज़ गोइंग टू very much beneficial for all the aspirants. And there are two more things. One, it is equally important for serious or senior aspirants who has already appeared many times in prelims, or they have also cleared many times the prelims. This initiative is also useful for them also because it covers the static subjects like now we are dealing with ecology and environment subject wise, important questions, important concepts, and also it covers the current affairs, important institutions, important indexes, important national parks, biosphere reserves, all those things it covers in this series. Okay, so please join this initiative and follow this initiative. You can get this initiative from pcsbaba.com, our website pcsbaba.com, where you can also get Target 2020 tab is there, and also you can join our telegram group where you will getting PDF. टेलीग्राम चैनल पर आप डेली आपको PDF मिलेगा, दिन सोल्यूशन अगले दिन मिलेगा और ये वीडियो भी उस पर पोस्ट किया जाएगा। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं रेगुलरली टेलीग्राम पे, हमारी वेबसाइट पे। प्लीज़ रजिस्टर ऑन आवर वेबसाइट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो एंड फॉलो दिस इनिशिएटिव rigorously. Okay friends, so just for the sake of information, I wanted to tell you now we will start this. Today we are going to discuss net practice day 3. तीसरा दिन है आज, इसका तीसरा टेस्ट हमने पोस्ट किया है और इसका हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं यहाँ पर क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, सो आपको पढ़ाई जो करनी है वो समझ के करनी है और इंटीग्रेटेड वे में करनी है, क्योंकि मेंस भी आपको क्लियर करना है। सो प्लीज़ कीप इन माइंड दैट यू हैव टू क्लियर द ऑल्सो मेंस, सो योर study should be integrated with prelims, mains and interview, because after clearing prelims it's not like that you will be covering all the syllabus, all the information, all the whatever you can say skills you can develop within 1 month, 2 months, 3 months. No, earlier it was different, but now the pattern is changed and you have to focus and you have to do integrated preparation. Then only you can get your name in the final list. That is important. Your ultimate aim is to get your name in the final list of UPSC or UPSC, not clearing prelims or mains and interview. No, if you finally are not getting selected, it's not of no use. So try to do preparation in that way and then try to cover stepwise. First focus on prelims, then mains, and like that you do. Okay friends, now okay, leave that. Just some motivational thoughts I wanted to give. Now we will start our नेट प्रैक्टिस डे 3. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इकोलॉजी इज़ अ परमानेंट इकॉनमी। इकोलॉजी इज़ अ परमानेंट इकॉनमी इज़ द स्लोगन ऑफ विच मूवमेंट। कि इकोलॉजी क्या है कि सतततर हमेशा के लिए इकॉनमी है, अर्थव्यवस्था है, एक परमानेंट अर्थव्यवस्था है। किस मूवमेंट का स्लोगन था? तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या हैं? अपिको मूवमेंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, चिपको मूवमेंट है, एंड देन नन। सो इसका आंसर क्या है यहाँ पे? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का आपको हिस्ट्री थोड़ा सा पता ही होगा, ज़्यादातर ये बहुत ही फेमस है, फिर भी आप देख लीजिएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा और हेमवंती ने इसको शुरू किया था। ये उत्तराखंड में क्या था कि पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को काटने से बचाने के लिए ये इनिशिएटिव और ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये आप देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। सबसे स्टेबल स्थायी इकोसिस्टम कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ भी चुका है। इसके पीछे का कंसेप्ट आप समझिएगा कि कंसेप्ट क्या है, स्टेबल किसको बोलते हैं और नॉन स्टेबल किसको बोलते हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम नहीं है। आई
मेक अ सेपरेट वीडियो, बट इसमें ऑप्शंस क्या क्या है, मैरीन है, ओशियन इकोसिस्टम, फॉरेस्ट है, माउंटेन है, डेजर्ट्स है। तो इसका क्या है, मैरीन सिस्टम जो है, ओशियन इकोसिस्टम इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। ओके, बिकॉज क्या है, ओशियन में क्या है कि बहुत तरह की डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी ऐसे केसेस में जहाँ पर क्या है कि डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, बहुत तरह के डाइवर्स काइंड्स ऑफ वो पाए जाते हैं, वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए है। नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज़ नॉट इको फ्रेंडली, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शंस क्या क्या है, बबूल, यूकेलिप्टस, नीम एंड पीपल। तो इसमें से कौन इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है? इसमें बबूल क्या है, अच्छा होता है हमारे लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा वो देता है। नीम क्या है, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही इसके मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, तो ऑक्सीजन को भी करता है। पीपल क्या है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर केवल बी बचता है, यूकेलिप्टस। सो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर है बी, यूकेलिप्टस इज़ नॉट इको फ्रेंडली। ठीक है दोस्तों, नाउ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। यूकेलिप्टस कंज्यूम्स मोर वाटर देन अदर ट्रीज। यूकेलिप्टस क्या है, बहुत सारा वाटर कंज्यूम करता है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑफन कॉल्ड इनमी ऑफ द एनवायरनमेंट। ये इनमी, शत्रु कहलाता है, पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है इसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है इसको, जिससे कि हमारा जो वाटर लेवल है वो डाउन होगा, बहुत सारा जल का वेस्टेज होगा अगर ज़्यादा है तो। ठीक है, तो इसलिए इसको यूकेलिप्टस को एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं माना जाता। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में क्या है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसा होता है? एक ट्रॉपिक लेवल से कैसा इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है कि रिमेन्स कांस्टेंट होता है? दे में इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसका आंसर क्या है? जैसे ट्रॉपिक लेवल क्या है कि एक जैसे कंज्यूमर, सबसे पहले प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन थर्ड टर्शियरी कंज्यूमर्स। सो प्रोड्यूसर्स में अगर एनर्जी 100% है तो अगले लेवल पे केवल 10% ट्रांसफ़र होती है। इसे 10% का रूल भी कहते हैं। ये एक बहुत ही फेमस रूल है इन्वायरमेंट में कि केवल 10% एनर्जी जो है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोअर ट्रॉपिकल लेवल टू हायर ट्रॉपिकल लेवल। ओके, so this is very important concept. So here the question is asking only whether it is decreasing or increasing or remain constant. तो आंसर क्या होगा? बी। चौथे का आंसर है बी, डिक्रीज होता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर्स इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो विच इज़ यूनिडायरेक्शनल। ये यूनिडायरेक्शनल होता है और हमेशा डिक्रीज होता है। ठीक है दोस्तों, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फिफ्थ क्वेश्चन, बायोमास पिरामिड इज रिवर्स्ड इन विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। जो बायोमास पिरामिड होता है, बायोमास क्या होता है? टोटल पर यूनिट एरिया, जो हमारा जो वेट होता है, जो भी उसमें स्पेसीज पाई जाती हैं उसको बायोमास बोलते हैं। उनका जो मास होता है वो उसमें जो पिरामिड बनाया जाता है उसको किस इकोसिस्टम में क्या होता है? रिवर्स्ड होता है। रिवर्स मतलब उल्टा होता है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो सबसे कम उनका वेट होता है, देन उसके बाद उनके ऊपर जो होते हैं उनका वेट ज़्यादा होता है, देन सबसे ज़्यादा टर्शियरी कंज्यूमर्स का होता है वेट। तो ऐसा इकोसिस्टम कौन सा है? फॉरेस्ट में तो नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स। ठीक है, पॉन्ड में भी नहीं होता, ग्रासलैंड में भी नहीं होता। देन बचता क्या है? ड्राई लैंड्स में। ड्राई लैंड्स में रिवर्स होता है, वहाँ पर क्या है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वेजिटेशंस हैं बहुत कम होती हैं, जो वेजिटेशन है बहुत कम होती है, तो उल्टा होगा, क्योंकि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उनका बायोमास बहुत कम है, फिर द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा है। ओके फ्रेंड्स, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्राई लैंड, सूखा क्षेत्र जो होता है वो उसका जो बायोमास पिरामिड होता है वो रिवर्स्ड होता है, उल्टा होता है। पिरामिड हमारा कैसे होता है? नीचे बेस चौड़ा होता है, देन ऊपर पतला होता जाता है, जो एक त्रिभुज बनता है, ठीक है, ट्रायंगल की शेप में। लेकिन इस केस में क्या उल्टा ट्रायंगल बनेगा, नीचे पतला ऊपर। ओके, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, ये पिरामिड्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर सो मेनी पिरामिड्स, number of pyramid, energy pyramids, then biomass pyramids, like that. So many things are there. Now moving to sixth question, the main reason of climate change is, main reason क्या है climate change? ऑप्शंस क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, पोल्यूशन, ऑल। आंसर डी। सिंपल क्वेश्चन है, ये कॉमन सेंस बेस्ड है, इसका आंसर डी हो जाएगा। तीनों चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेज के कारण भी इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, हमारा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर भी वो ख़राब हो रहा है, पोल्यूशन के कारण भी, तो ऑल हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब एक्सप्लेनेशन में।
देन 7वां क्वेश्चन है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। COP21 हेल्ड इन ईयर 2015 एट विच प्लेस? कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21st कॉप कहाँ पर हुआ था? हेल्ड एट विच प्लेस? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, फेमस था, पेरिस क्लाइमेट चेंज के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस, जो कि पेरिस क्लाइमेट चेंज बहुत फेमस था, इसलिए ये पूछा जाता है कई बार कि 21st। इसका नंबर भी याद रखिएगा आप लोग, नहीं तो जनरली क्या होता है रिसेंट पूछा जाता है कि रिसेंट जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुआ UNFCCC का या UNCBD का, वो कहाँ पर हुआ था, CBD का। लेकिन ये 21st इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको पूछा जा सकता है। तो ये पेरिस में हुआ था, क्योंकि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट वहाँ से बना था, ठीक है दोस्तों। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और वो सब चल रहा है 2015 से 2030 तक, वो यहीं पे बनाया गया था, इसी COP में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में। सो उसका आंसर हो जाएगा ए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 8th क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज। ग्रीन हाउस क्या होता है? वेरी सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। टू ऑब्टेन सस्टेनेबल सुटेबल टेम्परेचर फॉर प्लांटेशन by which barren mountain change into green, of heating the atmosphere by absorption of infrared radiation by atmospheric CO2, then D है depletion of ozone। तो यहाँ पर clearly you can see that C होता है कि जो infrared radiation होता है, जो large waves का जो radiation होता है, वो जब एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया जाता है तो ग्रीन हाउस बोलते हैं उसको, ठीक है। ये अर्थ को गर्म करता है, ठीक ना। 9th क्वेश्चन क्या था? कंसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस वाज पोस्टुलेटेड बाय। ग्रीन हाउस का एक कंसेप्ट किसने दिया? बहुत ही फेमस टर्म है, इट्स लाइक buzzword in environment. If anybody talks about in environment, then definitely he will talk about greenhouse gases. So greenhouse का जो concept है किसने दिया? Who postulated this greenhouse concept? Question is. Then options है CCC पार्क, जेन जेफर्स, नॉर्मन मेयर्स, जोसेफ फूरियर। तो ऑप्शन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। जोसेफ फूरियर ने दिया था, फ्यूरियर ने, जोसेफ, डी ऑप्शन, जोसेफ फ्यूरियर ने इस ग्रीन हाउस गैस कंसेप्ट का नाम पहली बार पॉस्टुलेट किया था, कंसेप्ट जो होता है। ओके दोस्तों, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ 10th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन ईयर 2005। Kyoto Protocol is regarding ozone layer depletion. Methane as a greenhouse gas is more harmful than CO2. इसमें ऑप्शन आपको स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। क्योटो प्रोटोकॉल कब गया था? 2005 में, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिगार्डिंग ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन लेयर से है या ग्रीन हाउस गैसेस से है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्चुअली ये स्टेटमेंट दूसरा रॉन्ग है। क्योटो प्रोटोकॉल जो ग्रीन हाउस गैसेस से है, ग्लोबल वार्मिंग से, ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मीथेन एज अ ग्रीन हाउस गैस इज मोर हार्मफुल देन CO2। सो मीथेन क्या है? वो CO2 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है, ये सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2, इसमें ऑप्शन देखेंगे कि हमको 2 एलिमिनेशन मेथड ऑल्सो यू हैव टू फॉलो समटाइम्स, लाइक 2 इज रॉन्ग। इट मीन्स दैट ऑप्शन A 1 and 2 is wrong. 2 and 3 is also wrong because 2 is there. Then C 1 and 3 and D 1 2 3. तो 1 2 3 3 में 2 आ रहा है. It means that by elimination you can solve this question. Okay, if you know only Kyoto protocol is not related with ozone layer depletion, you can mark right option for this question, C, because 2 is wrong. Okay friends, sometimes you have to use this elimination technique very smartly, because you may not be knowing all the statement, but you can find the correct answer by elimination. So follow this, practice this in such questions. Okay friends, so इसका ऑप्शन C हो जाएगा 1 and 3. ठीक है, इसमें देख लीजिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है 11 दिसंबर 1997 में किया गया था और इंटर्ड इन फोर्स 2005 में किया गया था। 1997 में साइन किया गया था, लेकिन ये जो फोर्स इसमें लाया गया था वो 2005 में। ठीक है, 11वां क्वेश्चन क्या है? स्मोक क्या है? ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम स्मोक, स्मोक प्लस फॉग का ये मिक्स है। स्मोक प्लस फॉग को मिला दीजिए तो क्या स्मोक बन जाता है। ठीक है, तो स्मोक प्लस फॉग
ये मैं उसी से आपको बता देते हैं, स्मोक होता है और फॉग होता है, ड्राइव्ड फॉर्म, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, सी हो जाएगा। स्मोक इज कॉज ड्यू टू, स्मोक किस कारण से बनता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका ऑप्शन देख लीजिए, एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स, फ्रॉम इंसिनेटर्स, ऑयल पेंट्स, ऑल ऑफ द एबव। इसका एमिशन फ्रॉम व्हीकल, एक्चुअली क्या स्मोक जो बनता है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं PN होता है, ठीक है, उसके कारण होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं, तो ये सारे चीज़ में होता है, ऑयल पेंट्स में भी होता है स्मोक, तीनों ऑल ऑफ द अबव की वजह से बनता है। देन 13वां क्वेश्चन है, हु हैड कॉइन्ड द टर्म स्मोक, स्मोक किसने बनाया, डॉक्टर हेनरी एंटोनियो। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, समटाइम कैन बी आस्क्ड, जस्ट कीप इन माइंड। एंड डॉक्टर हेनरी एंटोनियो ने स्मोक टर्म कॉइन किया था, ठीक है। नाउ 14वां क्वेश्चन क्या है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट इज, यहाँ पर ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। सेकेंडरी और प्राइमरी, तो यहाँ देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। एक्चुअली प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर दोज पोल्यूटेंट्स विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड विथ एनी, दे आर बीइंग इमिटेड फ्रॉम सम सोर्स डायरेक्टली, ओके, लाइक CO2, ठीक है। CO2 क्या है, बहुत सारे, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मेथेन, ये सब क्या है, प्राइमरी वो हैं, किसी मिल के नहीं बन रहे हैं। लेकिन ओजोन क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ओजोन क्या है, पहले ऑक्सीजन प्लस एक फ्री रेडिकल, जैसे क्या है कि जब ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है, UV रह जाते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है CFC की वजह से, तो उसमें क्या है कि फ्री रेडिकल बनता है एक ओजोन, तो ऑक्सीजन उस फ्री रेडिकल O के साथ कंबाइन है कि ओजोन या O3 बनाता है। जैसे स्मोक, स्मोक भी क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग मिलके बनाते हैं, ओके फ्रेंड्स। सो दीज आर द कॉल्ड एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओजोन, ओजोन सेकेंडरी। इस कंसेप्ट को भी समझना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा A, इस ओजोन। नाउ मूविंग टू 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फोटोकेमिकल स्मोक। अभी स्मोक हमने पढ़ा था, अब फोटोकेमिकल स्मोक कब होता है। फोटोकेमिकल क्या है, फोटोकेमिकल क्या है, लाइट, जब सनलाइट होता है उस केस में क्या फोटोकेमिकल बनता है। तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या है, पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है, स्मोक, देन हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड D, यहाँ पर कई चीज़ें हैं। ये मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है दोस्तों, फोटोकेमिकल स्मोक CFC के कारण नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर रॉन्ग थोड़ा हो गया है, मिसप्रिंटिंग है। पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट है, पान के कारण होता है, PAN, इसके कारण क्या होता है, फोटोकेमिकल स्मोक बनता है जब PAN होता है और उसमें सन रेज की प्रेजेंस में दे फॉर्म फोटोकेमिकल स्मोक, ओके दोस्तों, ठीक है। स्मोक होता है, देन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे फॉर्म फोटोकेमिकल स्मोक। सो इसका ऑप्शन जहाँ तक है, नेक्स्ट वीडियो आई विल बी क्लियरिफाइंग, पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट PAN है, ठीक है, यहाँ रॉन्ग मार्क हुआ है, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। नाउ कमिंग टू 16th क्वेश्चन, क्या है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इज़ हेडेड बाई, ये एक इंस्टीट्यूशन है नेशनल लेवल पे, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इज़ हेडेड बाई, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसमें ऑप्शंस क्या है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर, देन होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। तो यह इसका आंसर क्या है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समटाइम दे आर आस्किंग सच क्वेश्चन, सो प्लीज just focus and note down all the institutions, all the bodies, all the constitutional as well as non-constitutional or legal bodies who, if it is headed by Prime Minister, please take a note because it's important if it is being headed like National River Conservation NGRB, Ganga Council, National Ganga River Basin Authority is also headed by Prime Minister, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं जैसे नीति आयोग इस चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ओके। सो जो भी बॉडीज़ प्राइम मिनिस्टर हेडेड हैं उसको आप एक नोट कर लीजिए बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट, इट मीन्स, ठीक है दोस्तों। जस्ट फॉर कॉमन सेंस क्वेश्चन आई इंट्रोड्यूस बिकॉज दे आर आस्किंग इन UPSC स्पेशली एंड ऑल्सो इन PCS दे कैन आस्क सच क्वेश्चन, ठीक है। नाउ 17th क्वेश्चन,
इंडियाज रैंक इन ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020, ये इंपॉर्टेंट है, एवरी ईयर देर आस्किंग इन यूपीपीसी स्पेशली one question from indexes, what is the rank of India's rank, and please if continuously you follow, we will be covering all the important indexes in our 50 days plan, so please follow our 50 days plan continuously, you will be definitely getting most of the current affairs question from this initiative. Okay friends, now so इसमें आंसर देख लीजिए कि 140, 129, 142, 112, 142वां रैंक है, ये फैक्चुअली आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है. India slipped 142nd क्वेश्चन अगेंस्ट ऑफ 140 इन 2019 टू 140, 2 स्थान पीछे चला गया है और 142वें स्थान पर है. सो और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स दे आर आस्किंग who is releasing this report, so you have to also consider, you have to also be careful who is releasing this report. So this report is being released by Reporters Without Borders, ठीक है, RWP, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 18th क्वेश्चन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट, ये मैंने कहा था ना कि एक एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूशन का भी रहेगा, तो वी आर ट्राइंग टू कवर all the important institutions which are important for examination point of view. Okay, so Central Institute of Arid Horticulture, इसमें ऑप्शन क्या, उदयपुर, न्यू दिल्ली, बीकानेर, बीकानेर इसका ऑप्शन है. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर में है, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, इसको आप नोट करके बार बार पढ़ेंगे तभी याद होंगे, ठीक है. बट आप अगर इसको अटेम्प्ट करते जाएंगे वन बाई वन तो वी विल कवर ऑल द थिंग्स. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर, ठीक है. नाउ 19th क्वेश्चन, वाल्मीकि नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच एरिया, वाल्मीकि नेशनल पार्क किस एरिया में है, कहाँ पर है? तो इसका आंसर क्या है यहाँ पे? बिहार. देख लीजिए ऑप्शन ए, ये फैक्चुअल है क्योंकि नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है. ये आप लिस्ट बना के जस्ट यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू रिपीटली रिवाइज इट, देन ओनली यू कैन मार्क राइट इन एग्जामिनेशन एंड प्रैक्टिस लाइक दिस इनिशिएटिव प्रैक्टिस, देन इट विल बी परमानेंटली रिमेंबर्ड बाई यू, ठीक है. तो इसका आंसर क्या है? बिहार, वाल्मीकि नेशनल पार्क. देन 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, CBD कॉन्फ्रेंस बायोडायवर्सिटी, ठीक है, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन बायोडायवर्सिटी 14th हेल्ड इन 2018. इसमें देख लीजिए समटाइम दे गिव ईयर, समटाइम दे आस्क ओनली विच नंबर, लाइक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14, 13, 15. सो दोनों आपको दिमाग में रहना चाहिए. तो CBD COP 14 हेल्ड इन 2018 में कहाँ पर हुई थी? इसका ऑप्शन क्या है? सैम एल शेख जो कि उसमें इजिप्ट में है, देन ग्लासगो, कुमिंग एंड कैनकन. तो इसका आंसर क्या है? सैम एल शेख जो इजिप्ट में हुई थी 2018 में. अभी 2020 में फिर से होने वाली है, कहाँ पे होगी ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. तो ये होगा, इसका आंसर क्या है? ग्लासगो है आई थिंक. जो COP 15 होगी CBD का, वो कहाँ पे होगा ये भी इंपॉर्टेंट है 2020 में. ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टेस्ट में, फॉलोइंग टेस्ट में यू विल बी गेटिंग दिस क्वेश्चन, बट यू जस्ट कीप इन माइंड, ठीक है. सो इसका आंसर क्या है? ये ए है, सैमुअल शेख, ठीक है दोस्तों. सो टुडे वी हैव कवर्ड द ऑल 20 क्वेश्चन. सो प्लीज़ फॉलो दिस इनिशिएटिव. इट इज़ गोइंग टू हेल्प इन अ वेरी इंपॉर्टेंट वे, वेरी ब्रॉड वे. It will broaden your concept, your understanding, so that you can attempt any question based on this factual knowledge. I'm not saying that these questions are directly going to come, but they will enrich your knowledge and you can solve based on these questions most of the questions which are coming in examination, my friends. Believe me, it is my personal experience. I have been in interviews, UPSC mains I have cleared 3-4 times, and I have also appeared in interview, and I am also working in somewhere. And my friends who are designing this course and who are part of team, they are also having a lot of experience and they are designing this course based on UPPCS previous trends. Okay friends, so please follow and subscribe our YouTube channel, and please join our Telegram channel. Please visit our website and take the advantage of this initiative. It is totally free and free. Okay दोस्त, so ठीक है, please keep learning and be happy and be healthy and keep okay. Bye, meet you again. Thank you.